যত মত তত পথ। गंगा नदी निकल जा तो भी मायापुर, इससे निकल जा तो भी मायापुर, उससे निकल जा मायापुर, यहाँ निकल जा मायापुर, ऊपर निकल जा मायापुर, नीचे निकल जा मायापुर। सब रास्ते मायापुर जाते हैं। তত মত তত পথ। নমস্কার। অমুক লীলা আপনাকে প্রভু বলতে ইচ্ছে করছে না রিসেন্টলি আপনার কিছু লীলাময় বক্তব্যের জন্য। আপনি বলেছেন একটি ভিডিওতে যে শ্রী রামকৃষ্ণের বলা যত মত তত পথ কথাটি ভুল, কথাটি মিথ্যা। মানে একজন ব্যক্তি কতটা ইলিটারেট বা অশিক্ষিত হলে এই কথাটি বলতে পারে সেটা ধারণার বাইরে চলে যাচ্ছে। আমার যদি এখান থেকে মায়াপুর যাওয়ার দরকার হয় আমি যে কোনো রাস্তা থেকে যেতে পারি। আমার বাড়ির ডান দিকের রাস্তা থেকে গেলেও আমি মায়াপুর পৌঁছতে পারবো, সে বাঁদিকের রাস্তাটা দিয়েও মায়াপুর যেতে পারবো। কোটি কোটি রাস্তা আমি এরকম পার করতে পারবো যেগুলো থেকে ঘুরে ফিরে শেষমেশ মায়াপুরই যেতে পারবো। অস্ট্রেলিয়াও যাওয়ার ক্ষেত্রেও সত্যি, কানাডা যাওয়ার ক্ষেত্রেও সত্যি, আমি যে কোনো রাস্তা থেকে ঘুরে ফিরে মায়াপুর বা ऑस्ट्रेलिया বা कानाडा गए पहुँचते पारी। येस इट्स ट्रू। अगर मैं चाहता हूँ तो मेरा घर का बायां तरफ का जो रास्ते है वहाँ से भी मायापुर पहुँच सकते हैं, घर का दाहिना तरफ का जो रास्ता है वहाँ से भी मायापुर पहुँच सकता है। हर कोई जगह जाने का बहुत तरीका हो सकता है। येस इट्स ट्रू। आप ये नहीं जानते है कि हमारा ये जो दुनिया है ये एक गोल नींबू जैसा है। আমাদের যে পৃথিবী আছে এটা গোলাকার লেবুর মতো, তাই না? তো এত ছোট একটা পৃথিবীতে যে কোনো জায়গা থেকে যে কোনো যাওয়ার কোটি কোটি অসংখ্য রাস্তা হতেই পারে। এবং শ্রী রামকৃষ্ণের বলার যতমত ততপথ কথাটির অন্তর্নিহিত অর্থ জীবনে বাজার কোটি কোটি হাজার হাজার উপায় হতে পারে। যদি আমি অন্য কাউকে ক্ষতি না করি তাহলে আমি আমার ইচ্ছে মতন যে কোনো ওয়েতে আমি আমার জীবনটা কাটাতে পারি। अगर मैं चाहता हूँ तो बहुत ऐसे तरीके से मेरा ज़िंदगी जी सकता हूँ किसी को हानि ना करके। তো আপনি কেন এই কথাটি বলেছেন? কেন আমাদের এই যে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ তাকে ছোট করেছেন? এটা এর কৈফিয়ত আপনাকে দিতে হবে এবং প্রকাশ্যে ক্ষমাও চাইতে হবে। आप क्यों ऐसे बातें करके हमारा जो बंगाली योगी है विवेकानंद एंड रामकृष्ण, इन दोनों का मजाक उड़ाना चाहते हैं, इन दोनों का डिफेम करना चाहते हैं और ख़ुद को लाइमलाइट में लाने का कोशिश कर रहा है। ऐसे करके इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। कोई मछली खाए, सिगरेट फूके तो गलत किया ना। कोई भी दिव्य पुरुष किसी जानवर को मार के खाएगा, और अगर विवेकानंद अगर मछली खाए तो क्या एक सिद्ध पुरुष मछली खा सकता है? पहली फुर्सत में निकल। अगर आपके सामने एक सिद्ध पुरुष हो क्या मछली? আপনি বলেছেন যে স্বামী বিবেকানন্দ সিদ্ধ পুরুষ নয় কারণ তিনি মাছ মাংস খেতেন। ফার্স্ট অফ অল স্বামী বিবেকানন্দ কোনো দিন বলেননি বা ক্লেম করেননি যে তিনি সিদ্ধ পুরুষ বা তাকে সিদ্ধ পুরুষ মানা উচিত, তিনি ওটা ক্লেম করেন। কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে যে আপনি চান যে আপনাকে আমরা সিদ্ধ পুরুষ মানি, তাই তো? स्वामी विवेकानंद को आप सिद्ध पुरुष मानना नहीं चाहते हैं, ये आपका मत हो सकता है, लेकिन हम लोगों का क्या मत है ये हम पर छोड़ दीजिए। हम भली भांति जानते हैं कि हमें किसको सिद्ध पुरुष मानना है और किसको नहीं मानना है। हम आपके कहने में हमारा मत नहीं बदलेंगे, ठीक है? सो डोंट वेस्ट योर एनर्जी ट्राइंग दिस काइंड्स ऑफ स्टफ एंड डोंट ट्राई टू ह्यूमिलिएट, डोंट ट्राई टू डिफेंड द यूथ आइकन स्वामी विवेकानंद, দ্য ইন্ডিয়ান লিজেন্ডারি যোগী স্বামী বিবেকানন্দ। আমি কোনো জীবিত কোনো বস্তুকে মেরে খেতে পারি না। যদি কোনো প্রাণী মরে যায় তাহলে সেটা আর জীবিত থাকে না, তখন তাকে আমি খেতে পারি। अगर मेरा भूख आएगा, भूख लगेगा तो जो मरा हुआ चीज़ है उसको मैं खा सकता हूँ। कोई जीवित कोई प्राणी को नहीं खा लिया तो ही सही है, ठीक है? तो आपके पास साबित है कि स्वामी विवेकानंद किसी जीवित वस्तु को मार के खाया या दूसरों को उत्साहित किया कि जीवित वस्तु को मार के खाने के लिए? আপনার কাছে কোনো প্রমাণ আছে যে স্বামী বিবেকানন্দ জীবিত কোনো বস্তুকে মেরে কোনো দিন খেয়েছেন বা কাউকে মেরে খেতে এরকম উৎসাহ দিয়েছেন? তাহলে আপনি কেন এটা ইনসাল্টটা করছেন? यू डोंट हैव एनी राइट। कि बैंगन तुलसी से ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि तुलसी खा के पेट नहीं भरता, बैंगन खा के पेट भरता है। अरे भाई बैंगन को बनाओ, तुलसी का पत्ता रख के भोग लगाओ, बैंगन खा लो, पर ये बोलना तुलसी से वो श्रेष्ठ है, ऐसा कोई लॉजिक? যখন আমার খিদে পাবে তখন তুলসী আমার কোনো কাজে আসবে না। খিদের সময় খিদেটা মেটাতে বেগুন তুলসীর থেকে বেশি প্রয়োজনীয় বা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যাবে ওই সময়টার জন্য। তুলসী তার নিজের জায়গায় শ্রেষ্ঠ। আয়ুর্বেদিক অনেক ওষুধে লাগে, কবিরার জন্য ওষুধে লাগে, আমাদের ঈশ্বরের পুজোয় লাগে। তুলসী শ্রেষ্ঠ, তুলসীর শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলা যায় না। কিন্তু যখন আমার খিদে পাবে আমি কি তুলসী খেয়ে পেট ভরাতে পারবো বা আপনি পারবেন?
जब मेरा भूख लगेगा तब तुलसी से ज़्यादा बैंगन काम में ज़्यादा लगेगा, उस वक्त के लिए बैंगन का महत्व बढ़ जाएगा। तुलसी अपने जगह में श्रेष्ठ है, ठीक है। हर किसी का श्रेष्ठ होने का समय होता है, स्थान होता है, ठीक है। तो डोंट मिक्स दिस टू डिफरेंट थिंग्स, ओके, एंड डोंट ट्राई टू प्रूव रॉन्ग द से ऑफ स्वामी विवेकानंद। फुटबॉल खेलना भगवत गीता से ज्यादा श्रेष्ठ है, ठीक है। ये बोलना फुटबॉल खेलने से टीम स्पिरिट आती है, भगवत गीता पढ़ने से टीम स्पिरिट नहीं आती। तो भाई तुम 3 घंटा फुटबॉल खेलो और आधा घंटा गीता पढ़ लो, कर सकते हैं ना। पर ये बोलना गीता पढ़ना उससे ज्यादा श्रेष्ठ फुटबॉल खेलना है, ये गलत है। गीता पढ़ना बहुत अच्छा काम होता है, बहुत ज्ञान आता है गीता पढ़ने में, ठीक है। धर्म का ज्ञान आता है, जीवन का ज्ञान आता है। लेकिन जो जिस समय में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, उस समय हमारा देश ब्रिटिश का अधीन था, ठीक है। उसी वक्त हमें आज़ादी के लिए लड़ना पड़ता था। हम लोग को हमारा जो शरीर है इसको स्ट्रेंथफुल बनाना पड़ता था, ठीक है। माइंड को स्ट्रेंथफुल बनाना पड़ता था ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए। तो उसी वक्त सिर्फ गीता में ज़्यादा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानं धर्मस्य तदत्मानं सृजाम्यहम् ऐसे पढ़ करके आज़ादी नहीं आने वाले थे, ठीक है। तो इसी जो हालत को देख के स्वामी विवेकानंद ने बताया था कि फुटबॉल खेल के हम ईश्वर के नज़दीक जा सकते हैं। बहुत पहले गीता को कभी छोटा नहीं किए थे, लेकिन उसी वक्त को हमारा जो देश को उसको देख के उनको लगा कि हमें गीता पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरत अभी फुटबॉल खेलने में है, ठीक है। यही जो बात है उसका असर है, उसका असल बात है, असल मीनिंग है। गीता पढ़ा অত্যন্ত সুন্দর একটি কাজ, অত্যন্ত জ্ঞান লাভের কাজ, ধর্মীয় জ্ঞান, জীবনের জ্ঞান তাতে আসে। কিন্তু যে সময় স্বামী বিবেকানন্দ যেই পরাধীন দেশে জন্মেছিলেন বা বেঁচেছিলেন, সেই সময় আমাদের দেশ পরাধীনতার আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত। তো সেই সময় ফুটবল খেলাটা বেশি দরকারি ছিল গীতা পড়ার থেকে, কারণ ফুটবল খেললে শারীরিক মানসিক আমাদের শক্তি আসবে। আমাদের যে দেশ ভারতবর্ষ আজকে স্বাধীন হয়েছে সেটি পথ আরও ত্বরান্বিত হবে। পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দের প্র্যাকটিক্যাল বিভিন্ন আদর্শিত হয়ে আমরা পেয়েছি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস, ক্ষুদিরাম বোস, অরবিন্দ ঘোষ, সূর্য সেন, বারিন ঘোষ, এই জাতীয় বিপ্লবীদের যারা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন এবং আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাহলে সেই জিনিসগুলো না জেনে, ভেতরের কথাগুলো না জেনে আপনি উপর একটা প্রচার করার জন্য এরকম সস্তার কথা কেন বলছেন? এরকম ঢং করে যত মত তত পথ, আপনাকে মোটেও ভালো লাগছে না। इज लॉजिकली, फिलोसॉफिकली, थियोलॉजिकली, एपिस्टेमोलॉजिकली, ऑन्टोलॉजिकली गलत। जोकर, अपनी खुद को जोकर साबित करने का बहुत आपका इरादा है क्या? बात का जो असल मीनिंग है उसको बिना समझे, बिना जान के अब क्यों ऐसे बात करते रहते हैं? अब तो इस्कॉन का नाम खराब कर रहे हैं, लोगों के नज़र में आप इस्कॉन का बेइज्जती कर रहे हैं। आपका कोई हक नहीं है इस्कॉन का नाम खराब करने का, बेइज्जती करने का। ऐसे आपको क्षमा मांगना पड़ेगा सबके सामने। हम इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके बातों के ऊपर सेंसरशिप लगाया जाए तुरंत। ये इंडिया का बदनाम कर रहा है। स्वामी विवेकानंद का जो आदर्श है वो अब यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में भी बहुत लोग मानते हैं। रामकृष्ण विवेकानंद सेंटर वहाँ पे ओपन हो गया है। तो क्यों हमारा खुद का देश में ही ये जो विवेकानंद योगी है इसका अपमान ऐसे हुआ है? इस्कॉन अथॉरिटी को ऑफिशियली ये जो अमोघ लीला है इसके बातों के लिए क्षमा मांगना पड़ेगा हमारा जो कौम है इसके सामने, क्योंकि हमारा कौम का यूथ का आइकॉन है स्वामी विवेकानंद, चेतना का आइकॉन है रामकृष्ण देव, श्री रामकृष्ण। ऐसा व्यक्ति मेरे सामने खड़े होंगे मैं उनको नमन करूंगा कि आप शिकागो गए,
आपने हिंदुत्व को लेकर अच्छा स्पीच दिया, थैंक यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। नाइस। আপনি হয়তো এটুকুই শুনেছেন যে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় গিয়ে বলেছেন যে সিস্টার্স অ্যান্ড ব্রাদার্স অফ আমেরিকা, सिस्टर्स ऑफ ब्रदर्स इन अमेरिका, एवं लोकजन हाथताली बजाना शुरू कर दिए ताई सुने। आप शायद यही तक सुने थे कि स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए और बताया कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और लोगों ने तालियां बजाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन आप इसके आगे कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए ऐसे बातें कर रहे हैं, ठीक है। आगे का बात यही है कि स्वामी विवेकानंद और भी कुछ कीमती चीज़ें वहाँ पे बताए थे, जहाँ पे उन्होंने बोले थे कि हम जिस कम्युनिटी से आ रहे हैं, हिंदुज़म और सनातन धर्म, वो ऐसे एक कम्युनिटी है कि वो सिर्फ खुद को ही सच नहीं मानते, वो दूसरों का जो सच है, दूसरों का जो सोच है, उसका भी वैल्यू देते हैं। वी आर फ्रॉम दैट कम्युनिटी और दैट रिलीजन, हिंदुज़म और सनातन धर्म, which never only claims that it is truth but also accepts others' truth. We don't only tolerate other religions but also accept their thoughts. The difference between the words tolerance and acceptance was interpreted by Swami Vivekananda. अमोघ लीला, ऐसे लीला फिर से मत कीजिएगा, दोबारा ऐसे साहस मत कीजिएगा बंगाली पीपल का ऐसे भूल भाल समझाने का। जो इंडियन है उनको वो भूल भाल समझाने का। हम सब जानते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है, हम जानते हैं, आपको बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या सिद्ध पुरुष फाफा फाफा कर सकता है? इवन एक अंग्रेज से पूछा कि विवेकानंद जी से आप ऐसे स्मोकिंग करते हैं, ठीक नहीं है। उन्होंने बोला मैं भी इसको छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। अगर गांजा पीना सिद्ध पुरुष होने में बाधा है, तो आप तो शायद ये भी जानते हैं कि हमारा जो शिव जी है वो भी गांजा पीते हैं, तो आप क्या शिव जी का सिद्ध पुरुष होने के ऊपर भी क्वेश्चन लगाएंगे? लगाना नहीं चाहिए आपको। लॉर्ड शिवा स्मोक स्वीट, अमोघ लीला, you do you want to question Lord Shiva about his if he is Siddha Purush or not? You shouldn't do it. 2023 में आपको ज़रूरत पड़ रहा है कि 1993 में एक इंडियन मॉन्क अमेरिका जाके शिकागो जाके क्या स्पीच दिया था, उसका हिस्सा लेके खुद को लाइमलाइट में लाने का। আপনি এটা জানেন যে যখন শিকাগোয় বক্তৃতা দেওয়া হতো সেই মঞ্চে স্বামী বিবেকানন্দকে সবার শেষে বলতে দেওয়া হতো। আপনি কি এটা জানেন যে স্বামী বিবেকানন্দকে নিজে তিনি শিকাগো গিয়ে পৌঁছননি বা নিজে কিছু বলতে চাননি, তাকে মাদ্রাজ থেকে সেখানকার যুবকেরা চাঁদা তুলে শিকাগো পাঠিয়েছিলেন বিশ্ব ধর্ম মহাসম্মেলনে কিছু বলার জন্য হিন্দু ধর্মের হয়ে। এবং স্বামী বিবেকানন্দ যখন পৌঁছেছিলেন সেখানে নাম জমা নেওয়া শেষ, তবু স্বামী বিবেকানন্দ সবার শেষে পৌঁছেছিলেন এবং তাকে যিনি রেফার করেছিলেন তিনি এটা বলেছিলেন যে সারা বিশ্ব থেকে যত ধর্মগুরুরা এখানে এসেছেন ধর্মপ্রচার করতে, সকলের যত দার্শনিক এসেছেন সকলের জ্ঞান একত্রিত করলে যত পরিমাণ জ্ঞান হয়, এই ভারতীয় সন্ন্যাসী একাই তার থেকেও বেশি জ্ঞানী। আপনি কি জানেন যে সেই ধর্ম মহাসম্মেলনে সবার শেষে স্বামীজিকে বলতে দেওয়া হতো যাতে স্বামীজির বক্তব্যের টানে টানে সবাই বসে থাকে শেষ অবধি? আপনি কি জানেন যে সেই ধর্ম মহাসম্মেলন যখন মাঝপথে অনেক দর্শক চলে যেতে চাইতেন, তখন ঘোষক এসে বলতেন আপনারা কেউ যাবেন না, স্বামী বিবেকানন্দ সবার শেষে কিছু বলবেন। সেটা শুনে আবার লোকজন বসে যেতেন, দর্শক বা শ্রোতারা। আপনি এগুলো জানেন না। आप शायद ये नहीं जानते कि स्वामी विवेकानंद को वहाँ पे मौका देते थे सबके अंत में, ताकि जो श्रोता है जो दर्शक है वो सब लोग बैठे रहे अंत तक। अगर कोई जो ऑडियंस है तो बीच में लौट जाने का कोशिश करते थे, तो जो एंकर थे वो आके बताते थे कि आप कोई मत जाइए यहाँ से, स्वामी जी ने अंत में कुछ बताइए आपके लिए। ये सुन के सारे फिर से वापस बैठ जाते थे। इतना ही पावरफुल था हमारा स्वामी विवेकानंद। আপনি সেই পুরুষের সিদ্ধ পুরুষ হওয়া নিয়ে বক্তব্য রাখছেন বা প্রশ্ন করছেন যিনি বেদান্ত উপনিষদের অনেক মোটা মোটা বই মুখস্থ বলে দিতে পারতেন, অনেক পাতা বা অনেক শ্লোক। এবং তিনি যখন লাইব্রেরি থেকে বই নিতেন একদিন কি দুদিন পরে তিনি সেগুলো ফেরত দিয়ে দিতেন, মোটা মোটা এত মোটা মোটা বই। লাইব্রেরিয়ান তাকে জিজ্ঞেস করতেন যে আপনি যখন বইগুলো পড়বেনই না স্বামীজি, তাহলে আপনি কেন বইগুলো নিচ্ছেন? তখন স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন আমি তো বইগুলো পড়েছি। তখন লাইব্রেরিয়ান সেটি চেক করার জন্য তাকে যে কোনো জায়গা থেকে কিছু ধরতেন।
সেটি স্বামীজি বলেও দিতেন, কত নম্বর পাতায় আছে, কত নম্বর লাইনে আছে সেটি পর্যন্ত বলে দিতেন। এতটাই স্মরণ শক্তি, স্মৃতিশক্তি, আধ্যাত্মিকতা, আত্মজ্ঞানের হাইস্ট লেভেলে পৌঁছেছিলেন আমাদের স্বামী বিবেকানন্দ, আমাদের স্বামীজি। आप ये नहीं जानते। गीता में भगवान बता रहे हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों के पास जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आते हैं। और चैप्टर 9 वर्स 23 में भगवान क्या बोल रहे हैं? इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? भगवान क्या बोल रहे हैं? याप्य अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धा अन्विता तेपी माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। इसकी ट्रांसलेशन क्या है? इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? एंड हु वर्शिप देम विद फेथ, यानी जो उनकी पूजा करते हैं वो वास्तव में मेरी ही पूजा कर रहे हैं। बोलेगा अरे वाह, हो गया ना, यत्तो मत ततो पत, हो गया ना। लेकिन आखिरी लाइन क्या है? भगवान क्या बोल रहे हैं? आखिरी लाइन भगवान बताते हैं यजंती अविधि पूर्वकम, लेकिन वो मेरी गलत तरह से पूजा कर रहे हैं। ये विधि पूर्वक नहीं है, यजंती अविधि पूर्वकम। किसमें लिखा? भगवद गीता में। अब किसको मानेंगे? जो तो मौत तो पौत, या भगवद गीता को मानेंगे? हम किसको मानेंगे? विवेकानंद को मानेंगे या भगवान कृष्ण को मानेंगे? भगवान कृष्ण को मानेंगे। आप तो कृष्ण जी का भक्त है, कृष्ण जी भी, हम भी कृष्ण जी का भक्त है। लेकिन अगर कोई चाहे तो कृष्ण जी का बहुत काम का बुराई भी कर सकते हैं, बुराई भी बता सकते हैं। वो बचपन में माखन चुराते थे, गोपियों का वस्त्र चुराते थे। अगर कोई चाहे तो ये सब काम का सही मीनिंग भी निकाल सकता है। हम अमोघ लीला आपको देखे हैं एक यूट्यूब ऐड में, यूट्यूब एडवर्टाइज में बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि स्किप ऐड बटन से हाथ हटा लो, हमारा ऐड देखो, हमें यहाँ पे पैसा दो, हम मंदिर बनाएंगे। अगर कोई चाहे तो ये सब कार्य का भी गलत मीनिंग निकाल सकता है, कोई चाहे तो सही मीनिंग भी निकाल सकता है कि नहीं? तो क्यों अब चुन चुन के जो स्वामी जी है इनका बातों का, रामकृष्ण इनका बातों का गलत मीनिंग निकालना चाहते हैं, खुद को प्रचार में आने के लिए, लाने के लिए? हाँ, हर एक कहानी का, हर एक इंसान का, हर एक जगह का, वस्तु का कुछ अच्छा ही होता है, कुछ बुरा ही होता है। हमारा काम होता है कि चुन के जो अच्छा है उसको निकाल लेना। आपकी तरह ऐसे जो बुरा है उसको निकालना नहीं चाहिए, सही? राइट? तो आप भी ऐसे ही कोशिश कीजिए प्लीज। ये तो लॉजिकली भी सेंस नहीं बनाता ना। आप जीपीएस में डालो तो क्या सारे रास्ते जा रहे होते वहां पर? नहीं, बीच में जीपीएस कहता है भाई रास्ता गुम हो गया, भाई तो पागल हो गया तू। सब रास्ते एक और नहीं। और सबके अंत में आपको यही बोलना चाहूँगा, श्री रामकृष्ण जी का जो तरीका है वो तरीके से कि तुम्हारे चैतन्य होक, शायद आप में चेतना आ जाए। मे गॉड पुट सम वेल थॉट्स ऑन योर ब्रेन, इन योर ब्रेन। ये रामकृष्ण जी का बोलने का तरीका है, तुम्हारे चैतन्य होक। ठीक है? प्लीज़ डोंट एशेम ISKCON, प्लीज़ डोंट एशेम इंडियन कल्चर, please don't try to manipulate the Indian people, Bengali people. People nowadays are very much aware about what is truth or and what is wrong. Okay? Thank you. अमोघ लीला, बहुत लीला देख फिर से नहीं देखना चाहता है, ठीक है?